Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Imtiaz Suleiman from Leicester, UK. It gives me a great pleasure to be here amongst all of you today. I'm honored to be your guest and appreciate your hospitality. The award that has been given to me is a great honor and I'm truly grateful for this opportunity. All India Memon Jamaat Federation is an amazing organization offering medical and housing help, economic and uplifting. Mr. Iqbal Officer is really highlights the importance of organization and I'm humbled to be a part of it. I appeal to all my friends, all the communities of Memon, to support Iqbal Ba worldwide, right? And he's doing a very good job. I also, today that Alhamdulillah, I'm going to take one room for the college, inshallah. I commit myself for the one room. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you good health. Shukriya. Thank you very much. Thank you. Brothers, sisters, board members and friends. Iqbal Ba, Aziz Ba, Razia Bhai, MashaAllah, Bade Panya Vadil. My name is Imtiaz Suleiman. I'm from Leicester, UK. It gives me a great pleasure to be able to join you as a member of All India Memon Jamaat Federation in Mumbai. My links with the All India Memon Jamaat Federation, especially with Mr. Iqbal Memon Officer and his member. We have been privileged to be able to receive Iqbal Ba in London, Leicester, in the UK, on many occasions. I am aware of the tremendous work the Federation does in areas of charity, empowering and improving the quality of life Memons in all parts of India. The commitment, determination in civic and social work is extraordinary in a country with one of the largest populations on earth. Sure. Having been engaged in similar work, I know it needs time, commitment and resources to be able to do such acts of kindness that comes from people like you, leaders. Thank you. I'm grateful to all of you to be able to join me and my wife Mumtaz and share my experience. I know that all your projects you have been engaged and have been very successful in the partnership and the networks you have, not only in India, but around the world. Wherever we are, Memon community have improved lives of many Memons in India. तो माशाल्लाह वो खुशी थी है आई ऐसा के मेरी वाइफ क्या चाहिए बड़े तो मान दिन आयो ने बड़े कामकाज नारी दी आयो माशाल्लाह इकबाल बा जी वो फकर से गाल कर सका तो ने अल्लाह पाक आई जी उम्र में बहुत बरकत दी जे आई काम करी दी आयो आमीन आमीन ने ऐसा वर्षों से नारी दी आयो ना आई डिलीवरी भी करो था बहुत ट्रांसपेरेंट आई जे काम करी दी आयो आ बड़े की अपील करा तो सी पांजी जितनी भी मेमन कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड बदे पाबेगा थी ने इकबाल बा के सपोर्ट करो ये काम पानारी ने बहुत सारो काम कर दिया ने खाली काम नहीं तो टाइम इन ये सही जिंदगी की टाइम दी नहीं वकाफ दी नहीं है नारो ना हमेशा टच में हुआ तो इकबाल बाबे को के मुके हमेशा दिन था इंफॉर्मेशन के कदा कदा ये लोग ने कितरो ट्रैवलिंग करें था ही उम्र में जो ट्रैवलिंग करी दिया आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट सारी बात અને મા બધેથી ही જ अपील करा तो के पा बदे मिलजुल ने करूँ कम ने पांच ही ने के खाली अकड़ी कम्युनिटी है के पांच एक ऑर्गेनाइजेशन है मेमन जी कम्युनिटी बदे पा भेगा थी ने काम करूँ अकड़े भी के पाकड़ा मदद करी सकूँ तो माशाल्लाह अजीज बा आई भी बहुत रिस्पेक्ट करा तो माशाल्लाह ये वडील लियो माशाल्लाह बहुत सारो ये उम्र में है तो कम करी दिया है रजिया भाई हमेशा असांजे बेगा डब्ल्यू में ने माशाल्लाह बहुत सारी खिदमत करी है लेडीज विंग में अल्लाह पाक इन जे में बरकत दे यूथ विंग में पंजे इमरान आई यू डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क राइट वी encourage we this is what we need youth to come in front I mean they are doing such a brilliant work but we now need to come in so I encourage all of our youth to come forward please try and bring them let's have them to come forward and to work together with us I thank you very much jazakallah assalamu alaikum बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं
अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और इनके बहुत सारे कारकुनान और बोर्ड मेंबर्स के साथ में हाजिर हूँ। बिलखुसूस हाजी इकबाल मेमन साहब ऑफिसर, इनके साथ में भी इनकी सोबत इख्तियार की हुई है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा, एंड दी फेसेस ये जो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, वो देखकर ऐसा लगता है कि जो भी हमारे काका ने कहा कि हमें मोमिनों की ज़रूरत है, इस समाज को इससे भरने की ज़रूरत है, वो इस तरह की टीम और इस तरह के विजनरी लोग और जिनके पास सामाजिक एक हैसियत है वो लोग कर सकते हैं। और ये यहाँ पर नज़र आता है, बहुत खुशी भी, और ऐसा लग रहा है कि शायद जो एक सोच, एक माइंडसेट रहता है लाइफ को लेकर कि आगे क्या होगा हमारी कौम का, तो इस तरह की समाज और इस तरह के लोग इंशाल्लाह उसे बेहतर कर सकते हैं। मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह करीम इनके हौसलों में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए और इनके आने वाली नस्लों को भी इनसे ज़्यादा बेहतरी के साथ काम करने की तौफीक ज़ीशान अहमद अत्तारी, दावत इस्लामी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप रहनुमाई और गाइडेंस के अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने एक रोल मॉडल का लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल किया। हालांकि अल्लाह पाक जिस दिन बख्श देगा उस दिन शायद मैं अपने आप को कामयाब मानूंगा। ये आपका बड़प्पन है और आप लोगों की अच्छी नज़रें हैं कि आप इस कदर मुझे जो है खिताब से नवाज रहे हैं। First and foremost thing, Alhamdulillah, I'm a part of Dawat Islami, which is working worldwide. It's not only limited to Mumbai city or you say in India. Alhamdulillah, gentlemen from Amico must be knowing that we are working very greatly in UK, USA, Europe, Gulf, and eventually we are planning many academies in Gulf countries as well. It's like in India we are working in 50 sectors. Welfare is one part of Dawat Islami. Garib Nawaz Relief Foundation is the name of the wing that we take care of. Apart from that, education wing is working in approximately 1,000 schools across the nation. We have already started 37 international schools across the nation. We are planning minority girls colleges and universities across the nation. Alhamdulillah. So it's like we are striving harder. It's a very big mission that we are taking on our shoulders. And I cannot explain everything in detail right now, but it's like Dawat Islami as of now in this era does not need any introduction. Alhamdulillah. It is working to make sure that the person who is into modern era going to office is taking care of his business. At the same time, he should also take care of his deen. On 31st night across the nation, we have conducted approximately 3,000 congregations to make sure that the youth should not go towards alcohol and other drugs and other stuffs, because we see that people majorly take steps toward drugs in these nights. Alhamdulillah, approximately 10,000 seminars we have conducted so far in last 3-4 months across the nation with the name Say No to Drugs. और फिर गोवंडी इज्तिमा आपके सामने हैं। वुमेन्स विंग में अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक at approximately 4,500 places we conduct congregations. So it's like very big organization we are running. Eventually काका हमारे अमीन साहब हाजी साहब ने बहुत माशाल्लाह हाजी साहब के बारे में बताया और तारुफ करवाया है। अल्लाह पाक इन बड़ों को सलामत रखे। और जाहिर है कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन बड़ी अच्छी कमाल की बात कहते हैं कि जब नियतें अल्लाह की रिज़ा की होगी तो तुम देखना कि मदद किस तरह अल्लाह की जानिब से आती है। और नियतों में अगर खलल पैदा हो जाती तो कितनी भी कोशिश कोई क्यों ना कर ले, कामयाबी नहीं मिलती। तो माशाल्लाह हाजी साहब को तो जितना मैं इनके पास इनकी सोबत पाई है तो सीखने को ही मिला। अल्लाह करीम आप लोगों को और इनको काविशें करने वालों को कामयाबी अता फरमाए। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ज़रिए जिस तरह ये खैर पाई का काम हो रहा है, अल्लाह करीम को आफियत के साथ दुनिया भर में इसमें तरक्की अता फरमाए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mr. Imtiaz, Amico, Mrs. Mumtaz, Imtiaz, and everyone. First of all, please accept my apology. I came very late because I was in other part of the city for a business meeting, and then I got stuck in traffic also. It was a lot of traffic today. Yeah, a lot of traffic. That's the reason. So we welcome you. It's a pleasure to welcome you on behalf of All India Memon Jamaat Federation. So as you are one of our well-wisher, because I keep listening about you from our Honorable President, Mr. Iqbal Memon Officer, that you are a well-wisher of All India Memon Jamaat Federation and also entire Memon community around the world.
So you are aware that Alhamdulillah, All India Memon Jamaat Federation is the biggest parent organization in the world, Alhamdulillah, which represents 500 Jamaats, which are the chapters, and which is approximately 15 lakhs Memon. So that's the organization which is the biggest one, Alhamdulillah. And in All India Memon Jamaat Federation, what we believe, we don't only believe in upliftment, we also believe in humanitarian work. This is what our Honorable President always tell us, especially to we youth, that we need to do a humanitarian work. And when you are doing a humanitarian work, do for your community first, and then when you are doing it, do for the entire humanity. No caste, creed, religion shouldn't come in between. So do for that also. That's the reason we youth remove some time from our busy schedule and we keep on coming here and we are associated with them. So this is what he always tells us. Our Honorable Secretary, Mr. Aziz Machiwala, he is the senior most person, Alhamdulillah, in All India Memon Jamaat Federation. And now also, no matter where we travel, wherever we go, morning 9 o'clock, he comes to All India Memon Jamaat Federation office, Alhamdulillah. He gives us. This is something like he is also inspiration for we youth and everyone. So All India Memon Jamaat Federation keep on doing multiple work in housing, medical. System is very good. Transparency is there. If you can see that book, that's a souvenir book which comes once in a year. In the AGM, this get launched. So everything, the entire account is there. Even 20 rupees or 30 rupees transaction is there in that book. So transparency is there, which we actually love. So this organization has a transparency. Plus, when it's about the medical thing, so when it's about medical. So if it is a medical emergency, check instantly, get release. No formality. Within 24 hours. So these all things are there. Plus after that, then the upliftment work, skill center. You have already heard our ladies wing chairperson Razia Bhai Chashmala, who keep on working. She work a lot for women empowerment. So skill center is what, that's her forte. So she keeps on doing it. So women empowerment, what she does. So like this, we have a disaster wing. So moment, 10 years ago, these all things were not there. All India Memon Jamaat Federation, Alhamdulillah, has a very rich history. But this activities, this wing, youth wing, ladies wing, disaster wing we have, 24/7, there is a group of people who are available. If there is a calamity or anything, that people will reach there, no matter what. So disaster wing came up, then skill center thing, women empowerment, youth empowerment, everything education related. Now the latest thing which everyone is talking about in the world, that from 50 years in India especially, Memon has not came up with a university or any big educational institute. So this is something which is a dream of our Honorable President, Mr. Iqbal Memon officer, and Alhamdulillah, everyone is working hard day and night to make his dream come true, because this is something which is the need of the hour and this will benefit a lot of people. So we are working, and plus one thing I have observed that when we travel, I am very fortunate that I got the opportunity to travel with them, with Mr. Iqbal Memon officer, Mr. Aziz Machiwala. So I'm learning, I'm taking their experience also with me. So I observe that they don't get tired. I don't know what's I keep on finding the secret thing, that what they eat. I'm like 24/7 stick with them, that what they are eating, what they are doing. They don't get tired only. I get tired, they don't get tired. No. So these all things are like this. This is an inspiration to the youth and the entire Memon community. So it's a pleasure to welcome you and welcome you to All India Memon Jamaat Federation. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेपनाह खुशी है कि आज के मेहमान इम्तियाज़ सुलेमान साहब के लिए एक शानदार महफिल 570 जमानतों के सरबराह, हम सब के कायद, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में एक नया रोल मॉडल के तौर पर हम लोग आपके चेयरमैन को देखते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी में जहां इस मुल्क में 20 से 24 करोड़ हैं, लेकिन हमारे काम की जो नीचे ऊपर चलने वाली तराजू है उसमें हम कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। उसमें हम आज की तारीख में सबसे बेहतर तरीक़ेकार अगर किसी को देख रहे हैं तो मेमन जमात को देख रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि मेमन जमात में बहुत बड़ी तालीम आ गई है या बहुत बड़ा कोई इनकलाब होगा। मेमन जमात में एक बड़ी अच्छी चीज़ जो इन 10 सालों में देखने को मिली, वो चीज़ है जमात में ज़कात के पैसे का सही इस्तेमाल करना और लोगों के साथ लाना, क्योंकि ये वो काम है जो हर आदमी नहीं कर सकता।
कुदरत किससे वो काम लेना चाहती है। तो इकबाल भाई की टीम माशाल्लाह, अभी तो हम सबको नौजवान ही कहते हैं, क्योंकि 20-20 घंटे ये सफ़र करते हैं ट्रेनों में, और उसके बाद 8-10 घंटे 12 घंटे यहाँ दफ्तरों में होते हैं। शायद ही कोई मीटिंग, कोई प्रोग्राम ऐसा बचा हो। मैंने कभी उनको एक्सक्यूज़ करते नहीं देखा, साहब मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि इस कौम का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो आपके सामने है, और इन्होंने वो इनकलाब पैदा किया जो आने वाले दिनों में, यानी जो आज का 10 साल है और अगला 10 साल है, उन 10 सालों में आप देखेंगे कि क्या बदलाव आया। उसका एक मिसाल देता हूँ कि एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में थी, उसको पूरा करने का बीड़ा इकबाल साहब और उनकी टीम ने उठाया है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी तकरीरों में एक बात कहता हूँ कि एक रिफ्यूज़ी कौम, मुंबई 1947 के बाद पाकिस्तान से उसको भगा दिया जाता है, वो हिंदुस्तान आता है और वो दूसरी चीज़ों को नहीं चुनता, वो चुनता है सिर्फ एजुकेशन को। आपको आज फ़ख्र इंसानियत अवार्ड उन्होंने दिया है इम्तियाज़ साहब, आपको जान के हैरत होगी कि वो कौम बहुत छोटी से है, और वो है सिंधी, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मुंबई के जितने टॉप के कॉलेजेस हैं, HR, जय सिडनम, केसी, जितने हैं सब उसने बनाए, जो इस मुल्क की रिफ्यूजी है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं। आपका तो पूरी दुनिया में वजूद है, आप तो दावा करते हैं, और आपको तो सारी चीज़ें सरबराही करके भेजी गई, आपके पास तो तमाम चीज़ें पहले से आई हैं। लेकिन मैं उस कौम की एक मिसाल इसलिए रखा कि उस कौम ने सिर्फ एक चीज़ सोचा कि अगर इस दुनिया में मुझे तरक्की करना है और अगर अपना नाम पैदा करना है तो मुझे तालीम के मैदान में सबसे आगे आना होगा। वो काम भले लेट सही, लेट इसलिए मैं नहीं कहता कि वो लेट किया, क्योंकि आज भी मुंबई शहर में जितने बड़े इदारे, जितनी खानकाहें, मस्जिदें, दरगाहें, वो सब आपके आबो अजदाद की हैं आज भी। तो लेकिन अब जो नई टेक्निक, नई दुनिया आ रही है, उसमें इकबाल भाई बिल्कुल हम सबको साथ लेके 18 साल की अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत और आखिरी दिन तक जो उन्होंने काम करने का, और हर साल एक कॉलेज, हर साल कोई ना कोई एजुकेशन इदारा, और जो पहला इदारा इन्होंने भी शुरू किया वही हिंदुस्तान भर में उसका नाम हो गया। महाराष्ट्र के फर्स्ट या सेकंड मुख्यमंत्री के हाथ से उनको अवार्ड मिला जलगांव का। जब हम जलगांव विजिट को गए थे तो हमने देखा था कि आप वहाँ बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी जगह नहीं थी। आज इतना शानदार इदारा है। तो ये उनके विश्वास और उनके बीच रहने वाले साथियों का मामला है। दीन का जो मामला है वो मौलवी तय करें, क्योंकि हम तो सियासतदान हैं। हम तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो चीज़ उग रही है उसको ज़्यादा बढ़ाने में हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमतों से भी हमें बहुत सारी मदद लेने की ज़रूरत है, जिससे मैं अपनी कौम के मुस्तकबिल को बेहतर कर सकूं। शुक्रिया। दो मिनट में ही जो कुछ कहना है, तो अब ये है कि चैलेंज भी है और पूरे सागर को गागर में भर रहा है। मैंने तो महारत है आपके पास। जज़ाकल्लाह। असल में हाजी साहब ने अपनी बात कहते हुए एक बड़ा जो है समझाने के लिए एक बात कही कि ये दुनियावी तालीम और दीनी तालीम है ना, तो ये दोनों में इन्होंने महारत हासिल की है और यही मिशन लेके ये चल रहे हैं। इसका मतलब, इसके पस मंजर मिशन का ये है कि हमें हमारी नस्लों को, जो हाजी साहब ने कहा, वो कटमुल्ले नहीं बनाने हैं, ना ही मिस्टर बनाने हैं। हाय डैड, हाउ आर यू, फाइन, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, वो औलाद नहीं बनानी है, वो जनरेशन नहीं बनानी है। डैडी अभी टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लो डैडी, है ना, वो जनरेशन हमें नहीं बनानी है। और ना ही वो जनरेशन कि जो बेचारे मस्जिद में इमामती कर सके, नहीं वो भी नहीं। तो ना मिस्टर, ना मौलवी, मोमी। आने वाली इंशाल्लाह मेमन फेडरेशन की जो मिशन का एक बड़ा पार्ट होगा, वो जनरेशन मोमिन की होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और आज वक्त, हालात और पूरी दुनिया को देख लीजिए, सिर्फ मोमिन की जरूरत है, मुसलमान से दुनिया भरी है। अस्सलाम वालेकुम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा खुशी का मुकाम है कि लेस्टर से हमारे दोस्त इम्तियाज भाई एमी को कंपनी इनकी, जैसा इकबाल ऑफिसर जैसा पहचाना जाता हूँ मैं, इसी तरह ये इम्तियाज एमी को इनकी कंपनी के साथ में इनका नाम लगा हुआ है। बहुत मशहूर हस्ती है, हमदर्द कौम के और मास्टर ऑफ रिलेशन, सबके साथ इन्होंने रिलेशन रखा है। तो ये आए हुए हैं, इनका वेलकम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 500 मेमन जमात 15 लाख मेमन की तरफ से आज प्रोग्राम रखा। इनकी अहलिया भी साथ में आई हुई हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं, आ रही है अभी ट्रैफिक की वजह से। दूसरी खुशी की बात है कि मौलाना जीसान साहब बहुत बड़ी हस्ती है और एक खूबी यह है कि मैं हमेशा दीन और दुनिया दोनों को लेकर के ये एग्जाम्पल ये है कि जितनी महारत दीन में हासिल है उतनी महारत दुनियाई इल्म के अंदर भी महारत हासिल है। तो ये बड़ी खूबी की बात है और आज वक्त ऐसा आ गया है कि हमको ऐसे आलिम और ऐसे एजुकेटेड नस्ल को पैदा करना है कि दीन में भी मुकम्मिल हो और दुनियादारी में भी मुकम्मिल हो। तो और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दावत इस्लामी के अंदर ये निभा रहे हैं और मैं बड़ा खुश हुआ जब दावत इस्लामी का इज्तिमा था पिछले गोवंडी में पिछले हफ्ते। हमारे दिलावर भाई भी मेरे साथ में थे, तो इनका बयान मैंने सुना तो वाकई मुझे लगा कि एकदम साफ सुथरा और दिमाग में बैठ जाने वाली बात, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा आईटी मीडिया इसमें दावत इस्लामी के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। और हमारे अमीन भाई सलाहिया हमारे दोस्त हैं, हमारे हमदर्द हैं, उनके तसल्जुल से इनसे मिलने का मौका मिला। तो आज मैंने इनसे गुजारिश की कि आप इनको ऐसे अच्छा मौका है लेकर के आइए। तो इनको भी कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में कुछ जिम्मेदारी थोड़ी देंगे ताकि जिस तरीके से दावत इस्लामी का काम ये कर रहे हैं और जिस तरह आगे उन्होंने बढ़ाया है, तो हमारी कौमी काम है उसको भी हम लोगों को गाइड करें, कुछ जिम्मेदारी लें। इसके लिए एक मीटिंग करने वाले थे हम लोग, मगर ये सब कुछ काम की वजह से शायद दिल्ली जाना हुआ तो पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। तो आज इज्तिमाई मुलाकात के अंदर इनको बुला लिए हैं। तो ये एक आज दो खुशी का मुकाम है। तो मैं आपका भी पूरी मेमन बरादरी 500 मेमन जमात 15 लाख मेमन, उसके बाद से भी ये सब मेमन भी नहीं है, ये हमारे नॉन मेमन भी है। डॉक्टर अलाउद्दीन है, बहुत बड़ा काम करते हैं। ये हमारे कई इदारे के अंदर कई सेक्रेटरी हैं, कई कुछ है। अभी बहुत तफसील से जाऊंगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। हर आदमी जो है ये अंजुमन है। यहाँ हमारे दिलावर चोगले हैं, ये भी आप देखते होंगे इनको, ये भी मीडिया के मास्टर हैं। तो फेसबुक में और व्हाट्सएप में, ट्विटर में, हर जगह रोज नज़र आते हैं। इनके साथ में हमारे नीरव गांधी साहब एक गुजराती हमारे हैं, बिल्डर हैं, इनके पार्टनर हैं। आपका भी हम તમારું પણ વેલકમ કરીએ છીએ। અમે પણ ગુજરાતી છીએ, કચ્છી છીએ, તો કચ્છી માત્ર ગુજરાતી અને કચ્છી અમે
કચ્છના છીએ અને ગુજરાતના જ છીએ, તો તમને વેલકમ કરીએ છીએ। ને इसके अलावा हमारे ये बहुत बड़ा ये भी गाइड उसके अंदर जो आई अपने IAS और सिविल सर्विसेज का कोर्स वगैरह ये करवाते हैं। हज हाउस में इनको जगह मिला था, मगर बदनसीबी से पॉलिटिकल का शिकार हो गया वो। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ से 50 बच्चे IAS ऑफिसर बन करके निकले हज हाउस से, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खामोखा का जगह इतनी है मगर बंद कर दिया उन्होंने। तो ये बिल्कुल भटक रहे हैं, छानबीन बहुत ढूंढ रहे हैं, कहीं जगह मिल जाए, इधर उधर थोड़ा चालू किए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ। ये अच्छा हमारे ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, अपनी अपनी पहचान खुद ही देंगे। हमारे यहाँ पर निसार भाई हमारे 20 सेंटर 16 कितने सेंटर हमारे 17 सेंटर हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ट्रेनिंग सेंटर ये मुख्तलिफ महाराष्ट्र के अंदर ये चलाते हैं, जो लेडीज को पाँव पे खड़ी करना और उनको हुनर सिखाना। तो ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से अलग अलग गांव में महाराष्ट्र में ये पूरा अंजाम देते हैं। इनके साथ में हमारे अखलाक अंसारी साहब भी इनके साथ में ही हैं। तो और तो सभी खास ही खास हैं हमारे नगर सेवक। हाँ, ये नगर सेवक हैं कमाल भाई। हाँ, कमाल भाई। हाँ, कमाल भाई नगर सेवक हैं। ये हुरिया पटेल हैं, एडवोकेट हैं हमारी ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन में। रजिया आपा चश्मा वाला ये हमारी यूथ विंग की अपने सॉरी यूथ भी है, लेडीज की चेयरपर्सन है मदर टेरेसा। हाँ, और ये भी आग बोट वाला फैमिली से हैं, गुल रुखसार आग बोट वाला। ये भी हर हफ्ते यहाँ पर ड्यूटी अंजाम देती हैं। मेट्रोमोनियल यहाँ चलता है हमारा, और लगभग हर हफ्ते 2-4 जोड़े जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत से यहाँ पर होते हैं। तो हर अफराद जो है यहाँ पर ये बधाई जितना ही लेते अकड़ा जिम्मेदार सारे लोग यहाँ पर हैं। तो रजिया आपा से मैं गुजारिश करूँगा कि वेलकम। ये तो मैं हाँ जीसान भाई का भी नाम लिख लीजिए उसके अंदर मौलाना। तो रजिया आपा से मैं गुजारिश करूँगा कि वेलकम स्पीच हमेशा हमारी रजिया भाई वेलकम स्पीच जो है ना, ये मास्टर हमारी वेलकम स्पीच की जिम्मेदारी इनको ही हम देते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा इनको Assalamu alaikum. I'm honored and privileged, and this is a moment of pride for me. And I'm equally grateful to Iqbal officer for giving me this opportunity to welcome Imtiaz Bhai Suleiman and his wife Mrs. Mumtaz. तो विजय स्टेटस And Maulana Jisan Sahab and Nero Bhai Gandhi बैठ गया and Dilsar Bilawar Bhai Chaudhary. I welcome all of you. मौलाना पहले मैं मौलाना के बारे में बोलूँगी। मौलाना जिसान साहब दीन और दुनिया दोनों में एक्सपर्ट है, महारत रखते हैं। He is mechanical engineer, he is MA gold medalist, he is founder of SAMS Academy and he is managing director of Dawat Islami, जो हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस है। नीरव गांधी बिल्डर है बहुत बड़े, और दिलावर चौगुले का सोशल एक्सपीरियंस है। I have known Imtiaz Bhai since many years, almost since the 2012 when I went to Leicester for attending the meeting. Since that time I know him. Since then we are almost meeting every year for the WMO AGM.
He is a well-known figure in Leicester as businessman and at the same time, great community worker and host. Imtiaz Suman is the CEO of Amico Packaging, with his educational background, which includes business strategy, marketing, customer service, molecular biology, clinical research, hospitals, public speaking, and much more. With all the experiences and knowledge in his pocket, he established Amico packaging industry and successfully built his business globally, retaining nationwide with world-class management and product development. He built fruitful partnership with hundreds of importers delivering product globally. His product include pallet wrap, cardboard boxes, small cartons, packaging materials, paper bags, plastic containers, paper napkins, polythene bags, plastic bags, industrial packaging, beer coke packaging, mailing bags, table cover, polypostal bags, disposal articles, builder bags, gift bags, cake boxes, and many more. It goes on and on. As the CEO of Amico Packaging, he attended the prestigious Indo-British Trade Council Roundtable meeting in 2022 in honor of Peter Cook, the British High Commissioner of Ahmedabad. Now I will say some words about his humanitarian works. Based in UK, Leicester, he always remained ahead for community services. Being a life member of World Member Organization, he is always hosting dinner and lunches for the members of WMO who visited Leicester and to all the foreign scholars and members traveling for charitable causes. He is the best host. He enjoys doing humanitarian relief work activities as a member of ELINA Humanity Welfare, focusing on physical, spiritual and educational development of Muslim community in Europe, that is in Bulgaria and Africa and Zimbabwe and other regions. Last 3 years of Mashallah aiding pious scholars facilitating a free guest house services in Leicester City, helping Kashmir Orphanage Trust relief Blantyre, Malawi, and recently in 2024. Even he is not behind in sports world. He always sponsors trophies in Leicester sports activities. He traveled to Malawi, Pakistan. He even worked with lots of MPs in UK. And now he's inshallah will be working together with Sir Iqbal Sakrani, where they are launching Maiman Leadership Forum Europe program, an event which will be attended by ex-Prime Minister of UK, Jeremy Corbyn. He is also member of Muslim Council of Britain. He is council member of MLF and Leicester coordinator. He is a member of President Indus Hospital and Health Network UK for fundraising drive. He is vice chairman of MLF Maiman Leadership Forum in Leicester. He is running Maiman Khana facilities. He is running Maiman Khana facilities for Maulanas who comes from India, Pakistan, Bangladesh. They stay here for 3 days and do the collection for charity. They also work with the Islamic Foundation in Leicester, UK. He does lot of charity work for children in Africa, that is part of Malawi, and also look after the Midlands Indus Health Group of Pakistan. He also does lot of charity work for Kashmir Orphanage Sport. They also work with Islamic Foundation in Leicester, UK, with top world Mufti Taqi Usman Saab, Maulana Tariq Jamil Saab, and Maulana Arshad Madni Saab. So in short, he is excellent in business and also social activities, and we are lucky to host him in our All India Memorial Federation. पहले इनका अच्छा ये तो हो गया। थोड़ा ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन का कुछ एप्लीकेशन आई हुई है। हमारा मकसद जो है वो गरीबों की भलाई करने का है, वो रुकना नहीं चाहिए। इमरजेंसी कुछ एप्लीकेशन आई हुई है, तो बोर्ड के मेंबर हमारे हाजिर हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि उनकी हाजिरी में ये हो जाए। तो मैं हमारे सेक्रेटरी साहब करो बताए स्कूल जो है कितने जो है स्कूल जो जलगांव स्कूल जो है
कितना है? इन्हीं की 9,98,000 कंस्ट्रक्शन लेकर गए तो तो ना बनी गया। हाँ। रिपेयर दो जो स्कूल मिली है अपने को जलगांव की, तो वो मीटिंग चालू है ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन में कलाक पची करो मीटिंग चालू है ऑलरेडी। हाँ, तो 8 स्टैंडर्ड तक का हमको स्कूल मिली थी, 2 स्टैंडर्ड बनाने के थे, इसके लिए इसका पोटेंशियल 2 क्लास बढ़ा। ये एक ऐसी स्कूल थी एकदम स्लम एरिया में, इसको हमने अडॉप्ट किया और जितने भी जो थे वो सब उसको एक इंसान नहीं पढ़ सके ऐसी जगह थी। 250-300 बच्चे पढ़ते थे, अभी यहाँ पे 600-700 900 बच्चे पढ़ रहे हैं और 200 बच्चे अभी वेटिंग पे। और ये 14 महीने में एमपी के अंदर हमको बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला फर्स्ट। महाराष्ट्र 2 कमरे बनाए हैं एक्स्ट्रा। सैलरी लेकिन 94,000 सैलरी एक्सपेंसेस है 94,000। हम लोग है ना हर महीने यहाँ से जो सैलरी वगैरह जो है ये देते हैं, जो पढ़ने स्टूडेंट जो ना कि दो कोटेशन है कि रिपेयर एंड रिनोवेशन का है। Jalgaon has been started the construction of new 2 rooms as said by the AMJF delegates. The construction is undergoing. The project estimated cost is 9,98,200. और दूसरी है उनकी स्टाफ सैलरीज है 94,850 फॉर द पीरियड फ्रॉम जून टू नवंबर 24। ओके, ये ऐसी स्कूल थी कि जहाँ हमको बैक करना पड़ता बच्चों को वहाँ के लोकल रखने के भाई आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजिए, क्योंकि वो नहीं भेजते थे। फारूक सैयद साहब भी आए हुए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। गुलबूटे तो है उनका, मगर गुलबूटे के साथ में हर महीना कुछ न कुछ नया प्रोग्राम करते रहते हैं, तो वेलकम करते हैं। और आप भी थे ना जलगांव स्कूल, देखे ना अभी आप देखिएगा इसकी शक्ल और सूरत बदल गई है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जरा बीच की कुर्सी कहाँ है? बीच की कुर्सी है। વાંધો ના ગીરીએ છો હલ્લો અચો વેલકમ मुमताज વિયો ભાઈ વિયો। चलो ये तो अपना पास कर एकेडमी जरा पास कर पहले तो पास करायो। स्कूल जो दिया किती आहे? ही चलो ये ओके आई मैनेजिंग कमेटी जा मेंबर बताए 9 लाख रुपया 2 रूम एक्स्ट्रा पाई अंदर बनाई दिया हूँ, मोकली दीजिए। ओके करनो है ओके। इसी तरीके 11 हेलो चलो पैसा मोकलाई दीजिए। ये करो एप्लीकेशन करो जी अभी है सेविंग मशीन कितना है? अच्छा अंक उर्दू में ले दीजिए कि समझे ना समझे एक्चुअली हर महीने ऐसा जी मीटिंग हर महीने हमारी मीटिंग होती है जिसमें 1 करोड़ रुपया पास करते हैं। तो ये भी कुछ दिन पहले हुआ, मगर ये बीच में आ गया तो एक मौका अच्छा है, तो आपके हाजिरी में इसको कर दिया जाए। अभी वो मीटिंग फिर 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद होगी, तो उसमें वो सारी जो फाइल है अभी करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मगर वो शेड्यूल मीटिंग सिर्फ होती है वो एप्लीकेशन पास करने के लिए ही मीटिंग होती है। वो मगरिब के बाद शुरू होती है और 10:30-11 बजे तक चलती है वो मीटिंग। 1 करोड़ रुपया लगभग अल्हम्दुलिल्लाह
वो हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह पास किया जाता है और दूसरे दिन से चेक अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, एवरी मंथ। बीओ कोई एप्लीकेशन आई? No, it's no application. ठीक है, तो इमरान भाई हमारे हमेशा मैं कहता हूँ कि लेट और लतीफ हैं और कहा जाता है कि इकबाल हमेशा लेट आता है मगर मैं हमेशा वक्त पर पहुंच जाता हूँ। कहावत यह है कि इकबाल हमेशा लेट, यही है ना कुछ तो, इकबाल लेट आता है हमेशा मगर मैं वक्त पे पहुंच जाता हूँ। इनका इंतजार ही करना पड़ता है हमेशा। खैर बहरहाल ट्रैफिक का मामला है, हम समझ सकते हैं और ये भी ट्रैफिक में फंस गए थे। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, ये हमारे यूथ विंग के चेयरमैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरे इंडिया में 103 यूथ विंग अब तक बन चुकी है। 500 जमात है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं लेडीज विंग से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इसी तरह, लेडीज विंग भी पूरे इंडिया में आप भी इसी तरह बनाइए मगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया में मैं जमात इमरान फ्रूट वाला आप बैठिए ये एजीएम में फख्र इंसानियत का अवार्ड हम हमेशा देते हैं हर एजीएम में, जो ऐसे लोगों को देते हैं जो कौम और मिल्लत के लिए कुर्बानियां दी हैं और काम किए हैं और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वेल विशर हैं। तो इस बार ये आए हुए हैं इस मौके पे इम्तियाज एमी को लेस्टर, उनको फख्र इंसानियत का ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 500 मेमन जमात 15 लाख मेमन की तरफ से ये स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है। तो बेसिकली फख्र इंसानियत ये अवार्ड जो है, so it is also known as world, everyone says that Memon community, one of the most prestigious award is Fakhre Insaniyat. People actually feel that we should get it, so that's the award. Congratulations to you. तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो दिन रात कौम के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। एज मिस्टर इम्तियाज एमी को बहुत काम करते हैं यूके से भी और हर जगह। तो ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। इनका काम देखकर, ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं अपनी कंट्री में भी और साथ साथ बाहर की कंट्री में, वो देखकर ये प्रेस्टिजियस मेमन कम्युनिटी का अवार्ड फख्र इंसानियत इनको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा एक इनको मेमन डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया में एम्बेसडर है, पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, जर्मनी, कराची, केनिया, मालावी, मलेशिया, जापान, KSA, सऊदी, मोजाम्बिक, बेल्जियम, म्यांमार, पोर्टुगल, तंजानिया और नेदरलैंड, ये पूरी दुनिया का भी एक साउथ अफ्रीका और यूके के अंदर इनको बनाया गया है, जो 10 अप्रैल को खैर का काम करेंगे बगैर मिल्लत मजहब के भेदभाव के बगैर। तो ये इनको अवार्ड दिया जा रहा है। इनको एम्बेसडर बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। थैंक यू सो मच। दूसरा मेमन टाइम्स निकलता है, इनका पैटर्न मेंबर मेमन टाइम्स के पैटर्न मेंबर। सोल भी शो ही नहीं रहा है, इनके अंदर सर्टिफिकेट लगे लिए। Ini pernah dia punya organik camera.
पूरा पूरा बदी सब लेडीज मिल करके मुमता अचो आई अपने एडवोकेट हुरिया आ जाओ हुरिया पटेल यहाँ स्पेशल मंगायो कश्मीर थी हम लोग अभी साथ में थे लंदन में। जी, जी। हाँ गिनो इस सोविनियर गिनो अभी हमारे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मौलाना जीशान साहब ये आपको ये एजाज जो है ना बहुत छोटा है आपके कद के हिसाब से मगर जो कुछ भी है हमारे पूरी बरादरी की तरफ से आपका ये माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। नहीं बोली दियो अमीन भाई एक और डिक्लेयर कर दूं आज हमारे तमाम के मशवरे से हमारे सेक्रेटरी हैं अजीज भाई और तमाम नेशनल एग्जीक्यूटिव के बोर्ड के मेंबर हैं आपके मशवरे से अमीन भाई को अपने एडवाइजरी बोर्ड हमारा जो है कौन कौन एडवाइजरी बोर्ड में क्या रही भाई आई ये एडवाइजरी बोर्ड के अंदर बातचीत क्लियर कर रहे हैं आज हाँ कौन कौन है ये भी बता देते हैं आपको एडवाइजरी बोर्ड में अब्दुल कादिर डबावाला, रशीद दरबार, जेबुल निसा मील वाला, जुबैदा भाई खड़वानी, अब्दुल मजीद रनानी, मंसूर मेहता, सूफी हाजी मोहम्मद अफजल पाटका, इम्तियाज कोठियावाला, अफरोज लकड़कुट्टा, सिद्दीक जान मोहम्मद मोतीवाला, डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला। ये पूरे इंडिया के 10 लोग हैं। मोहसिन लोखंडवाला जो है वो गुजरात के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। पार्टी तो बन जाती है, हाँ? पार्टी बनती सलाह साहब तो पार्टनरशिप में करनी पड़ेगी ना आपका बर्थडे भी और दिल्ली है चलिए अल्लाह आपको अल्लाह मुबारक करे आपको बहुत मुबारक। हाणे पंहिंजे बाइटूं गिनी आहिनि बधे जी फटाफट शॉर्ट बाइट गिनी आहिनि बधे जी वो मिनट जी उदय पंहिंजे माइक जी बताइए। बहुत अच्छा 11 बजे फिर डिनर नीरव गांधी का फोटो जी आप आए हैं ये तो आते रहते हैं ना हमेशा आपको पहली बार आए ऐसा पढ़ के आप हमारे वेजिटेबल गिरी नहीं है अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम असरार अहमद है। आस्ते मैं विल्सन कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और मैं इस वक्त मोहतरम जनाब इकबाल मेमन अफसर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 35 सालों से मैं तालीम पर रिसर्च कर रहा हूँ और कुरान शरीफ का पहली आयत इकरा यानी अगर हमें जिंदगी में कुछ भी तरक्की करना हो तो बिना तालीम के हम तरक्की नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इकबाल साहब के अंदर वो जो चीज़ पिछले 35 सालों से वो रिसर्च में ऑब्जर्व किया वो है खिदमत खल्क। हमारी पैदाइश का अल्लाह ताला ने मकसद सिर्फ और सिर्फ रखा है खिदमत खल्क, उसके बाद हमें सब कुछ मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इकबाल साहब को अपना मेंटर अपना गाइड मानते हुए और अपने आप को पिछले 35 साल के एजुकेशन सर्वे और रिसर्च का अपने आप को वक्फ करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 500 जमातें प्लस 15 लाख मेमन और उसके बाद 15
करोड़ मुस्लिम प्लस 100 करोड़ इंडियन प्लस ग्लोबली 8 बिलियन पीपल के लिए मैं तालीम के लिए इस वक्त कर रहा हूं। अब मैं ये बताना चाहता हूं, तालीम के मैदान में जो रिसर्च किया हूं उसमें जो लॉर्ड मैक्यूले ने सिस्टम जारी किया था, आज पूरे भारत में बच्चे पढ़ाई से नफरत करते हैं। उस नफरत को उल्फत में बदलने के लिए मोटिवेटर की बहुत सख्त जरूरत है। और व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज आई एम अ विल्सन प्रोडक्ट, व्हाट आई हैव सीन दैट चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी दे आर वरीड अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क इन इंडिया। हम क्या करने वाले हैं, पूरे भारत देश में हम मेमन जमात की तरफ से पहले 15 लाख बच्चों के लिए सेमिनार, वालिदैन के लिए स्मार्ट पेरेंटिंग, बिकॉज टुडे पेरेंट्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ। नंबर 2, व्हाट इज स्टूडेंट्स दे लव टू लर्न, they want to become one great personality, but nobody is telling from nursery to university level why you are learning. That's why all are bored. So what we can do, we can inculcate law for learning, for the life skill, for the career, for everything. What I have designed after going through the entire country, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 35 साल से कोई फीस नहीं लेकर मैं इस फीस सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे दिला रहा है। यानी आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट इंशाअल्लाह अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल इंडिया मेमन जमात and the youth wing, of course we can do a lot. I will train the youth to become like Asrar. Asrar is not alone, but it is a teamwork. Or inshallah we have got what is called the women's wing. We don't have the children's wing. Under the guidance of women's, we have to form children's wing, because from nursery to university level, you know what is required, that the parents love, and what is called, lot of things are there. I'm sure that in future when we'll sit together, we have designed the learning system in India. What is given by the Lord Macaulay, तमाम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे परेशान हैं। कोचिंग क्लास और ट्यूशन में जाने के बावजूद 25 लाख बच्चों में से 15 लाख बच्चे नीट एग्जाम में कामयाब नहीं हो रहे हैं। 5-5 साल तक वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। IAS, IPS, IFS में 6-6 साल तक रिवीजन है। बंबई शहर से 75 साल की हिस्ट्री में शायद कोई सिंगल IAS ऑफिसर हमारी कौम से पैदा हुआ है। मैंने वो रिसर्च किया। उसके लिए हमें नर्सरी से 2050 का ख्वाब देकर प्लान करना पड़ेगा। यहाँ कुछ हजरात मौजूद हैं जिन्होंने मुझे पिछले 30 साल से 35 साल से देख रहे हैं, मैं उनके साथ लगा हूं, लेकिन आज तक मुझे इकबाल साहब की तरह कोई शख्स नहीं मिला पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। व्हाट इज माय, यानी आज तक तालीम के लिए किसी ने इंटरेस्ट नहीं। यहाँ मौजूद है जो मुझे 30 साल पहले भी देखे थे, तब से मैं आज तक बहुत लोग हैं जो हर तरफ में गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को, और इम्तियाज साहब और मुमताज मैडम, ये दोनों के नाम से ये बहुत ही मुख्तलिफ है। इम्तियाज है, मुख्तलिफ है, यानी यहाँ पर यूनिक है। एंड मुमताज साहिबा, दैट वी आर द मुमताज इन द वर्ल्ड, यानी इम्तियाज मुमताज के साथ और इकबाल साहब के साथ मैं आप तीनों को अपना गुरु और अपना गाइड मानता हूं, और यहाँ के तमाम डिग्नेटरीज को उम्मीद दिलाता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस असरार को, जिसने अभी तक सिंगल है, शादी नहीं किया, कलाम की तरह वो सिर्फ काम कर रहा है, APJ अब्दुल कलाम की तरह। आई एम सिंगल एंड डे एंड नाइट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरह 20 घंटे नहीं 24 घंटे मेहनत करता हूँ, थकता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसी टीम मिली जो हमारी तरह है, 24 घंटे चलते चलते सोता हूँ, और ये सब पिछले 35 साल प्लस से कर रहा हूँ। 35 साल नहीं, प्लस 35 साल। वही बोल रहा था, आपकी एनर्जी बहुत सुपर है और आप किया माशाल्लाह। अब मैं आपके हवाले हो गया, आप मुझे अभी से दीजिए, राउंड द क्लॉक आई एम फॉर यू। आपने बोल दिया ना बस। क्या है? बोल दो। अच्छा, बहुत शुक्रिया।